Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Time period. Time period is the time taken for one complete oscillation to take place. The time period is measured in seconds. In fact, the reciprocal of time period is frequency. टाइम पीरियड वो होता है जिसमें एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है, उसको टाइम पीरियड कहते हैं. टाइम पीरियड मेजर किया जाता है सेकेंड्स में. इसका रेसिप्रोकल टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी है. Wavelength. The distance between two successive compression and rarefaction in a wave is termed as wavelength. It is also defined as the length of one complete wave. Wavelength is measured in meters. जो डिस्टेंस होता है दो सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के वेव के बीच का, उसको बोलते हैं वेवलेंथ. और इसको ये भी कहा जाता है लेंथ ऑफ एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है उसको वेवलेंथ कहा जाता है, और इसको मेजर किया जाता है मीटर्स में. स्पीड ऑफ साउंड. The speed of a wave is the measure of how fast the disturbance travels in the medium. The speed of sound in air is about 330 meters per second. Sound travels faster in solids than in liquids, followed by gases. Factors such as temperature, humidity, and the direction of wind can affect the speed of sound. Speed of sound मेजर ये होता है कि कितना डिस्टर्बेंस ट्रैवल होता है मीडियम में, यानी वाइब्रेशंस कितनी फास्ट वो मीडियम में ट्रैवल करते हैं, उसको बोलेंगे स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड ऑफ साउंड एयर में 330 मीटर्स पर सेकेंड होता है. साउंड सॉलिड्स में बहुत फास्टेस्ट ट्रैवल होता है, और लिक्विड में उससे कम, और गैसेस में उससे भी कम ट्रैवल करता है. फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं साउंड को वो है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और डायरेक्शन ऑफ विंड. Types of sound. Sound can be classified based on its audibility to the human ear. Audible and inaudible sounds. When we say we can hear a sound, we refer to what is perceived by human ear. The sound we can hear are called audible sounds, as these range from 20 Hz to 20,000 Hz in terms of frequency, or from 0 to 130 decibels in terms of intensity. There are other sounds that are inaudible to us. These are called infrasonic or ultrasonic sounds. Types of sound. Sounds को classify किया जाता है human ear कितना सुन सकता है उसके बेसिस पे साउंड को क्लासीफाई किया गया है. साउंड टू टाइप्स के होते हैं, ऑडिबल साउंड्स एंड इनऑडिबल साउंड्स. जो हम सुनते हैं, जो हमारे ह्यूमन ईयर परसीव करता है, सुन सकता है, उसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड्स, और इसकी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में होती है, और 0 to 130 डेसिबल्स इंटेंसिटी के टर्म्स में होती हैं. ऐसे भी साउंड्स हैं जो हमको सुनाई नहीं देती हैं, वो होती हैं इनऑडिबल साउंड्स, और इनको इंफ्रासोनिक साउंड्स भी कहते हैं और अल्ट्रासोनिक साउंड्स भी कहते हैं. Infrasonic sound. Infrasonic sound refers to sound waves that have a frequency less than 20 Hz. There are many animals such as elephant and rhinoceros that produce sound in this frequency range. Infrasonic sound वो साउंड वेव्स होते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है. बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे एलिफेंट और राइनोसेरस जो इस टाइप की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो इस फ्रिक्वेंसी की रेंज के होते हैं. अल्ट्रासोनिक साउंड. Ultrasonic sound refers to the sound waves that have frequency more than 20,000 Hz. Animals such as bats produce ultrasonic sound. Other animals such as dogs, monkeys and leopards can hear ultrasonic sound. Ultrasonic sound वो होते हैं
जिनकी वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं। और कुछ एनिमल्स हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे डॉग, मंकी और लेपर्ड्स। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। Music and noise. Sound like that of music are called pleasant sounds, as they are soft and gentle and do not disturb us. Unpleasant sounds such as loud noises irritate us and are not gentle to our ears. Another difference is that pleasant sounds are rhythmic sounds, whereas noise is irregular, does not have any rhythm. Sound produced by musical instruments such as sitar, harmonium, and flute are musical sounds. These sounds are pleasing to the ear. कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं, म्यूज़िक जैसे होते हैं, उनको बोलते हैं प्लेजेंट साउंड्स, और ये सॉफ्ट और जेंटल होते हैं, ये हमको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अनप्लेजेंट साउंड्स वो होते हैं जो लाउड नॉइजेस होती हैं, जो हमको इरिटेट करते हैं और हमारे कानों को सुनना अच्छा नहीं लगता है। अदर डिफरेंस प्लेजेंट साउंड का ये है कि प्लेजेंट साउंड जो है रिदमिक साउंड्स होते हैं और नॉइज़ जो है इरेगुलर होता है, इसमें कोई रिदम नहीं होता है। साउंड्स जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, जैसे सितार, हारमोनियम, फ्लूट, तो इनको बोलते हैं म्यूज़िकल साउंड्स। ऐसे साउंड्स हमारे कानों को सुनना बहुत अच्छा लगता है और हमारे कानों को बहुत प्लीज़ करते हैं। Noise pollution and how to reduce it. Noise pollution, like other types of pollution, is undesirable to us. They affect us and our environment. Loud noise disturbs and irritates us. Living near areas prone to a lot of traffic noise and heavy machinery can affect our brain. This can lead to harmful effects, some of which are as follows. It can reduce the concentration of a person and also lead to headache and hearing problems. Number 2. Loud noise can affect the sleep pattern and cause psychological disturbances. Number 3. Loud noise over a period of time can lead to hearing loss. Number 4. Recent studies have found that loud noise can affect our health in terms of stress, hypertension, and can lead to behavioral problems. Number 5. Noise pollution can cause psychological effects such as increase of heart rate and constriction of blood vessels. नॉइज़ पॉल्यूशन और उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। नॉइज़ पॉल्यूशन भी दूसरे पॉल्यूशन की तरह अनडिज़ायरेबल है, हमारी इच्छा से नहीं होता है और ये हमको और एनवायरनमेंट दोनों को इफ़ेक्ट करता है। लाउड नॉइज़ जो है हमको डिस्टर्ब करता है और इरिटेट करता है। अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ होती है, उस एरिया में अगर ट्रैफिक नॉइज़ ज़्यादा है, हैवी मशीनरी है, तो वो हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। इस तरह से ये हमारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कॉज करता है हमारी बॉडी को। कुछ इफ़ेक्ट्स इस प्रकार से है। नंबर 1, ये कंसंट्रेशन पर्सन का रिड्यूस करता है और हेडेक और हियरिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। नंबर 2, लाउड नॉइज़ जो है स्लीपिंग पैटर्न को चेंज कर देता है और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस कॉज करता है। नंबर 3, लाउड नॉइज़ की वजह से लंबे टाइम तक आप अगर लाउड नॉइज़ में हो तो फिर आपको हियरिंग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप सुन नहीं सकोगे, बहरे हो जाओगे। नंबर 4, अभी की ये रिसेंट स्टडीज़ में ऐसे पता चला है कि लाउड नॉइज़ जो है हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे स्ट्रेस, हाइपरटेंशन और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। नंबर 5, नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी कॉज करता है, जैसे आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा और कंस्ट्रिक्शन आपके ब्लड वेसल्स में हो जाएंगे, यानी आपके ब्लड वेसल में ब्लॉकेज भी हो जाएंगे और हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। सो हाउ कैन वी रिड्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन? दो नॉइज़ पॉल्यूशन कैन नॉट बी स्टॉप्ड, it can be reduced to a large extent. Number 1, avoid loud sounds or loud music. Number 2, turn off appliances such as TV and music system when not required. Number 3, use of earplugs when near heavy machinery or any other high level sound can prevent damage to ears. Number 4,
Machines should be lubricated and enclosed in sound absorbing rooms to prevent noise pollution. Number 5, plant more trees around as they absorb sound. अब साउंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? दो इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को, पर हम ज़्यादा हद तक इसको रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट है कि हमको लाउड म्यूज़िक नहीं बजाना चाहिए, लाउड साउंड्स नहीं बजाने चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। नंबर 2, जो अप्लायंसेस जैसे टीवी, म्यूज़िक सिस्टम को ज़्यादा लाउड नहीं बजाना चाहिए और ज़रूरत नहीं है तो उनको टर्न ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। नंबर 3, ईयर प्लग्स को यूज़ करना चाहिए, और जहाँ पे हैवी मशीनरीज और दूसरी हाई साउंड है वहाँ पे हमको ईयर प्लग्स को यूज़ करके अपने ईयर्स को डैमेज होने से बचाना चाहिए। नंबर 4, मशीनरीज को बार बार लुब्रिकेट करना चाहिए ताकि, और उनको एक रूम के अंदर एनक्लोज करना चाहिए ताकि उसकी जो नॉइज़ है वो बाहर ना आ सके, और लुब्रिकेशन करने से वो ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट नहीं करेगी। नंबर 5, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए जिसकी वजह से साउंड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं ट्रीज़, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए।